Namaste dosto, welcome back to our channel. Today I'm excited to share a special episode with you. When I first started working in a corporate environment, I quickly realized that the way we speak and the words we use can significantly influence how we are perceived. So I have compiled a list of top 25 words that helped me sound more professional and confident at work. Whether you are pitching an idea or just trying to navigate daily interactions, these words can help you too. चलिए शुरू करते हैं. Text 1. Align. When I first joined a project team, I kept hearing my manager say, "We need to align our strategies." Initially, it sounded quite high-tech, but I quickly realized that its importance. Align का मतलब है कि आपको अपने thoughts और plans को teams के goals के साथ मैच करना है. It ensures everyone is heading in the same direction. जब भी आप अपने ideas को teams के साथ share करते हैं, try saying, "Let's align on this," and watch how it changes the conversation. Text 2. Leverage. I remember the first time I proposed using an existing tool to increase our team's productivity. My boss praised me, saying, "Great idea to leverage what we already have." Leverage essentially means using available resources to achieve more with less effort. इस word का इस्तेमाल करके आप अपनी efficiency दिखाते हैं, and it really impresses senior managers. Text 3. Streamline. Streamline. ये शब्द सुनने में जितना स्मूथ है, काम में उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है. In one of my early projects, we had a complicated process that was taking too much time. I suggested, why not streamline this process? Streamlining means making a process simpler and more efficient. It's a great word to use when you want to show your thinking about productivity. Text 4. Optimize. Next up is optimize. I learned the value of this word when working on optimizing our digital ad campaigns. It means making something as effective and functional as possible. It's a powerhouse word that shows you're focused on improvement and peak performance. Text 5. Efficiency. चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर, efficiency. इमेजिन कीजिए अपने आप को एक प्रोजेक्ट के बीच में जहां डेडलाइंस भयंकर तरह से नजदीक है. एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. हमारी टीम ने एक क्रूशियल प्रोजेक्ट पर काम किया था और डेडलाइंस की वजह से हमारे ऊपर जोर से दबाव था. बट डोंट फ्रेट, बाय स्ट्रीमलाइनिंग योर प्रोसेस यू कैन एनहांस योर एफिशिएंसी. दैट मींस कंप्लीटिंग टास्क स्विफ्टली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. तो अगली बार जब आप किसी काम पर उतरते हैं, थिंक अबाउट हाउ यू कैन मैक्सिमाइज efficiency and sail through like a pro. Text number 6. Initiative. हाँ, initiative. ये एक असली game changer. It's about seizing opportunities, taking charge and making things happen. Let me share a personal experience. जब मैंने पहली बार अपनी टीम के सामने एक नया प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर मैं इनिशिएटिव ना लेता तो कुछ नया अचीव नहीं कर पाएंगे. So I gathered courage and presented my ideas. And you know what? My initiative took the project to new heights instead of waiting for instructions. Take the initiative to drive and progress innovation. Whether it's proposing new ideas or solving problems, initiative sets you apart as a proactive contributor. So next time you can spot on an opportunity, don't hesitate to take the lead and make a difference. Text 7. Dynamic. Alright, now let's dive into the term dynamic. ये एक टर्म है जो काफी वर्सेटाइल है और काम के अंदर नए तरीकों को इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया देता है. Being dynamic means being adaptable and open to change. जब आप डायनामिक होते हो तब आप हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो और नए चैलेंजेस को टैकल कर सकते हो. और देखो, हर मुश्किल को मैंने अपने क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी से टैकल किया और अपने करियर में ग्रोथ देखी. सो रिमेंबर टू स्टे डायनामिक इन योर अप्रोच टुवर्ड्स वर्क एंड लाइफ. टेक्स्ट नंबर 8. स्टे अहेड ऑफ द कर्व. नाउ लेट्स टॉक अबाउट stay ahead of the curve. Yes, I've talked about this before. ये एक फ्रेज है जो दर्शाता है कि आप नए ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स के आगे रहें. जब आप ahead of the curve होते हो तब आप सबसे पहले नए चेंजेस को एंटिसिपेट करते हो और अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एडजस्ट करते हो. जब मैं पहली बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा, मुझे पता था कि मुझे हर समय अपडेटेड रहना होगा. आई मेड इट अ हैबिट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व
by constantly learning and adapting to new trends and technologies. इससे आप ना सिर्फ कंपटीशन से आगे निकलते हो बट ऑल्सो अपने पीयर्स से एक स्टेप अहेड रहते हो. सो मेक इट अ हैबिट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व इन योर इंडस्ट्री एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस. टेक्स्ट नंबर 9, agenda. Our next word is agenda. एजेंडा का मतलब होता है एक प्लान या आउटलाइन जो मीटिंग या किसी और एक्टिविटी के लिए बनाया गया हो. जब मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं हमेशा एक डिटेल्ड एजेंडा तैयार करता हूँ. इससे सब मेंबर्स को पता होता है कि हम किस टॉपिक पर फोकस करेंगे और क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मीटिंग या डिस्कशन में शामिल होते हो, मेक श्योर टू हैव अ क्लियर एजेंडा टू कीप थिंग्स फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव. टेक्स्ट 10, स्किल सेट. नाउ लेट्स डिस्कस स्किल सेट. ये एक टर्म है जो आपके एबिलिटीज और एक्सपर्टीज को डिस्क्राइब करता है. जब आप अपने स्किल सेट को मेंशन करते हो तब आप दिखाते हो कि आप किस क्षेत्र में माहिर हो और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर स्किल सेट एंड कंटिन्यूअसली वर्क ऑन एनहांसिंग इट टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन योर फील्ड. टेक्स्ट 11, कंसेंसस. आगे बढ़कर लेट्स टॉक अबाउट कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब है एक कॉमन अग्रीमेंट या ओपिनियन जिसमें सब लोग सहमत होते हैं. जब टीम या ग्रुप में कंसेंसस बन जाता है तब डिसीजन लेने में आसानी होती है और सबको एक डायरेक्शन में काम करने का समर्थन मिलता है. सो स्ट्राइव टू अचीव कंसेंसस इन योर टीम डिस्कशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर स्मूथर कोलैबोरेशन एंड प्रोग्रेस. अब सर्कल बैक के बारे में बात करते हैं. ये एक फ्रेज है जो इंडिकेट करता है कि किस विषय पर बाद में फिर से डिस्कस करना या रिविजिट करना है. जब आप किसी मीटिंग या कॉन्वर्सेशन के दौरान किसी टॉपिक को सर्कल बैक करते हो तब आप इंडिकेट करते हो कि उस विषय को बाद में और डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा. सो मेक इट अ प्रैक्टिस टू सर्कल बैक ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू एंश्योर थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलो अप. टेक्स्ट 13, सिनर्जी. हाँ, सिनर्जी ये एक टर्म है जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है. जब आप टीम मेंबर्स के बीच सिनर्जी क्रिएट करते हैं तब आप सबको मिलकर ज़्यादा अचीवमेंट्स और सक्सेस पाने का मौका देते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर सिनर्जी विद इन योर टीम टू अनलॉक ग्रेटर पोटेंशियल एंड अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. टेक्स्ट 14, टच पॉइंट. टच पॉइंट का मतलब है एक इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन का पॉइंट जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक या इशू पर बात होती है. जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में टच पॉइंट मेंशन करते हैं तब आप फोकस को डिफाइन करते हैं और डिस्कशन को ऑर्गेनाइज रखते हैं. सो बी माइंडफुल ऑफ टच पॉइंट इन योर कम्युनिकेशन टू एंश्योर क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस इन योर इंटरेक्शन. टेक्स्ट 15, एक्सपर्टाइट. एक्सपर्टाइट का मतलब है किसी काम या प्रोसेस को तेजी से पूरा करना. जब आप किसी टास्क को एक्सपर्टाइट करते हैं तब आप उसे प्रायोरिटी देते हैं और जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी काम को जल्दी करना हो, डोंट हेसिटेट टू एक्सपर्टाइट इट फॉर टाइमली कंप्लीशन एंड एफिशिएंट वर्कफ्लो. टेक्स्ट नंबर 16, डाउन द लाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउन द लाइन. डाउन द लाइन का मतलब है किसी फ्यूचर इवेंट या सिचुएशन को कंसिडर करना. जब आप किसी डिसीजन या एक्शन के साइड इफेक्ट्स को डाउन द लाइन देखते हो तब आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हो और अकॉर्डिंगली प्लान करते हो. सो ऑलवेज थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस डाउन द लाइन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड स्ट्रेटजीज. चलो लेट्स डाइव इनटू एक्स्ट्रा माइल. ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है किसी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा करना. जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो तब आप अपने काम में एडिशनल एफर्ट्स डालते हो और एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हो. सो मेक इट अ हैबिट टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल इन योर एंडेवियर्स फॉर रिमार्केबल रिजल्ट्स एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. टेक्स्ट नंबर 18, माइक्रो मैनेज. माइक्रो मैनेज के बारे में बात करते हैं. माइक्रो मैनेज का मतलब है एक्सेसिवली डिटेल्स में इन्वॉल्व होना और एम्प्लॉयज का काम को कंट्रोल करना. जब आप किसी काम को माइक्रो मैनेज करते हो तब आप उनकी क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट करते हो. सो इंस्टेड ऑफ माइक्रो मैनेजिंग, एम्पावर योर टीम मेंबर्स एंड ट्रस्ट देम टू डिलीवर रिजल्ट्स. टेक्स्ट 19, अपस्किल. हाँ, अपस्किल ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है
अपने स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करना। जब आप अपस्किल करते हो तब आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को डेवलप करते हो या नया स्किल्स को सीखते हो टू स्टे रेलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव इन योर फील्ड। सो मेक कंटिन्यूस अपस्किलिंग अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट। नेक्स्ट 20, पैराडाइम शिफ्ट। अब बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की। पैराडाइम शिफ्ट refers to a fundamental change in a approach or underlying assumption. When a company undergoes a paradigm shift, it means they are embracing new ideas or technologies that completely alter the way they operate. So, be open to paradigm shifts in your industry, as they often lead to innovation and progress. Text 21, seamless. Now, let's discuss seamless. Seamless means smooth and continuous without any interruptions or difficulties. When processes or transitions are seamless, it means everything flows effortlessly and without hiccups. Sorry. So strive to make your workflows and interactions seamless to enhance efficiency and customer satisfaction. Text 22, benchmark. Moving on to benchmark. A benchmark is a standard or reference point against which things can be measured or compared. In the corporate world, benchmarks are often used to evaluate performances, set goals, or assess progress. So, identify relevant benchmarks in your industry and strive to meet or exceed them to stay competitive. Text number 23, holistic. Let's dive into holistic. Holistic means considering the whole rather than just individual parts. In a corporate context, a holistic approach involves addressing all aspects of a situation or problem, taking into account various factors and perspectives. So, adopt a holistic mindset in your decision-making and problem-solving process to ensure a comprehensive solution. Text number 24, value proposition. Value proposition. A value proposition is the unique value or benefit that a product or service offers to customers. It answers the question, why should customers choose us? A strong value proposition communicates the specific benefits and advantages that set a company apart from its competitors. So, focus on articulating and delivering a compelling value proposition to attract and retain customers. Text 25, reach out. And finally, reach out. अब ये और एक ज़रूरी शब्द है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन को बढ़ाना और सपोर्ट मांगना। कभी कभी जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता या आप अपने काम में फंस जाते हो, तो आप अपने पीयर्स या सीनियर से मदद मांगो। इन अदर वर्ड्स, उनसे कनेक्ट करो और हेल्प मांगो। रिमेंबर, asking for help is a sign of strength and not weakness. Thanks for tuning in. If you are ready to revolutionize your workflow and enhance productivity, why not book a Clappingo trial today? Experience the power of our innovative tools firsthand. Don't forget to subscribe to our channel for more insightful content on corporate strategies and business English. Until next time, stay ahead of the curve with Clappingo.